वो रेड का निशान आने लगेगा आपको उसमें। हाँ, चालू करिए। Good morning, everyone. So today we will discuss adverb. So let us start the class with a song. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall all be free, we shall all be free, we shall all be free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. So let us revise what we have done previously in our class. So we have previously we have discussed about adjectives. So all of एक you. बार पीपीटी में क्लिक कर दीजिए, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था। पीपीटी में दोबारा से रिज्यूम कर। Okay. जी जी। हाँ सही है, क्लिक कर दीजिए, आ रही है। So in the last class we were discussing about adjectives. So we have discussed types of adjectives. If you remember, we have discussed about adjectives of quality, quantity, number, demonstrative adjectives, and interrogative adjectives. So we have also discussed about degrees of adjectives. So do you remember adjective of quality? So if you want to if you want to tell something about the quality of noun or pronoun that you are using in the sentence, so certain words are used that are adjectives of quality, like an honest man, like a diligent boy, or a good boy. Okay, so good, good, honest, all these qualities that we are words that we are using to describe the quality of noun. These are all adjective of quality. Okay, so with for quantity, quantity, do you remember? What are the adjectives of quantity? So so adjectives of quantity they can be quantity can be definite. Oh, sorry, indefinite. For uncountable nouns, the nouns that we cannot count, we like I want some rice, some rice. Okay, so like patience cannot be counted. So keep a little patience. So such kind little patience. So patience is one which cannot be counted, and to describe it, we are using what adjective of quantity, which is little patience. Okay. Okay. So adjective of number. So if you remember, they can be definite, indefinite, or distributive. We have discussed about them. Definite means like one apple, two apple, three apple. You are just pointing out the number of whatever noun you are referring to. You are just pointing out what is the number of that. है ना? Two apples, three apples, or you can also specify what is the order.
like first, second, third. So these are all adjectives of quantity. Okay, with definite, these are definite numeral adjectives. So indefinite you can also use indefinite, like for countable nouns as well. Like there are some to point out in general, like some boys were standing, है ना? A few boys were standing. So few is what? Indefinite numeral adjective, but it is used with a countable noun. Okay. So distributive, like each of you should do your work. Each one of you, है ना? So I am for, within a uh, within a group. I am saying individually within a group. So that is why I am using each one of you. Okay. So demonstrative. I want to point out something. है ना? This boy. So I want to point out this boy. This boy is late. So this boy. नाउन के साथ यूज हो रहा है दिस, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. सो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ फॉर इंटेरोगेटिव, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हिच बॉय, लाइक बॉय के साथ क्या यूज हो रहा है, व्हिच, then I'm asking the question for boy, which boy. Okay. And like which, what you can also use what, like what matter is it, like क्या चल रहा है ऐसे करके, है ना. मैटर के साथ you are using what. Okay. So whose, you can use whose also. This whose book is this. So book is noun. With this book के साथ हम क्या use कर रहे हैं, whose, for as an interrogative adjective. So we had also discussed about degrees of adjectives. So degrees of adjectives are what? Like certain, we can call out, we can call a comparison between two person, or we can call a comparison between a person and a group. Okay. So for that we have to define a word which is which will be our different degrees of adjectives. Like अगर आप small, smaller, smallest, है ना. If you want to compare, small is the prime word. It is a positive adjective, small. I'm just saying कि this tree is small. Okay. कि ये पेड़ छोटा है. लेकिन अगर मैं कहूँ next में this tree is smaller than that, ये पेड़ उससे छोटा है ना. Comparison में, comparative degree में. So this is the comparative degree. And the third one, if you want to say this tree is smallest, if you want to compare one with all, so that is smallest. So there are 3 degrees of adjectives. So let us do exercise. What you have to do in this, you have to first identify the adjectives, and then tell the degree of comparison. Okay. So let us start. Make less noise. So what is adjective here? Less. Yes, correct. So what will be its degree of comparison? No, less is the positive. This is positive adjective. Okay, if you want to specify which type of adjective it is adjective of quantity. Okay, less noise. You cannot measure noise, but you are saying something about it, like less noise. कम शोर मचाओ, है ना. कम शोर. हाँ, it is a adjective of quantity, but if you want to less का जो अगर degree of comparison, you have to say कि less का lesser हो जाएगा. Comparative degree, what is the comparative degree of less? Lesser. Okay. So next one, Hari is the idealist boy in the class. Idealist. Yes, quality it is. It is quality, adjective of quality. And idealist. Idealist is a superlative degree. Correct. Yes. So the next one, he thinks he is wiser than his father. Wiser, yes. Correct. It is comparative degree. Correct.
My knife is sharper than yours. Sharper. Correct. It is comparative degree. Next one, he has many power friends. Many. Yes, correct. It is positive adjective. Solomon was one of the wisest men. Wisest. Yes. It is superlative. Okay. So let us move towards our another part of speech, which is adverb. So what is an adverb? An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective, or another adverb. So what is the meaning? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें जो एक वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, राम रन्स क्विकली. तो इसमें इसमें क्या हो रहा है कि राम भागता है ना. वर्ब की विशेषता अब लेकिन आ रही है कि राम भागता है कैसे, तेज भागता है. तो क्रिया की विशेषता पता चल रही है हमें. राम जो क्रिया कर रहा है उसकी क्या विशेषता है. राम रन्स क्विकली. इन व्हाट मैनर, कैसे भागता है. अगर आप क्वेश्चन लगाओगे कैसे भागता है तो आपको आंसर मिलेगा क्विकली. ओके. इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. सो ये एक स्वीट मैंगो है, ये एक मीठा आम है. अब आपको ये करना है कि ये मीठा आम है इन व्हाट डिग्री और हाउ मच. ये कितना मीठा आम है. अब स्वीट क्या हो गया, मैंगो स्वीट. स्वीट इज व्हाट, एडजेक्टिव है ना. इफ यू सी इट केयरफुली देन स्वीट इज एडजेक्टिव. मैंगो की विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है, आम मीठा. तो आम मीठा है मतलब मीठा. स्वीट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बारे में क्या कौन बोल रहा है, कितना मीठा है. वेरी, इट इज वेरी स्वीट है ना. दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. ओके. वेरी, what is very here, it is adverb, and very is telling something about this adjective. Okay. So next one, Govind reads quite clearly. So quite is adverb here कि गोविंद लिखता है, वो बहुत क्लियरली लिखता है, साफ सुथरा लिखता है. लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट, कितना साफ सुथरा लिखता है, मतलब रीड्स क्लियरली. अब इसमें क्लियरली एडवर्ब है. वो क्या बता रहा है कि लिखता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो साफ सुथरा लिखता है ना. तो लेकिन उसकी भी उसका भी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है. क्या वर्ड, क्वाइट. ओके. और अगर आप क्वेश्चन पूछो कितना अच्छा लिखता है तो यू विल गेट द आंसर क्वाइट. ओके. सो now let us look at the kinds of adverb. So there are basically three categories: simple adverb, interrogative adverb, and relative adverb. Okay, so three categories. First we'll discuss about simple adverbs. Simple adverbs are like, if you can see the example, I can hardly believe it. इसमें क्या होता है कि आगे आप देखोगे कि इसके जो सिंपल एडवर्ब्स के जो टाइप है उनसे पता चलेगा आपको कि या तो आपको क्वालिटी पता चलती है, जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जो भी है उसकी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी या फिर प्लेस, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, मैनर, क्वांटिटी है ना, टाइम, ये सब पता चलता है. तो देखो एग्जाम्पल में, आई कैन हार्डली बिलीव इट. मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा इसे, है ना. मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा. आई कैन हार्डली बिलीव इट. तो आई कैन बिलीव इट, मैं विश्वास कर सकता हूँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ. हार्डली, अब विश्वास कर सकता हूँ, अब ये तो क्रिया हो गई, विश्वास करना है ना. लेकिन इसकी वो बता रहा है कि बहुत मुश्किल से, मतलब मैं विश्वास कर नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल है विश्वास करना, है ना. तो दिस इज व्हाट, एडवर्ब, हार्डली. तो यू आर क्वाइट रॉन्ग. आप काफी गलत हैं. आप गलत हैं, स्थिति बता रहा है, आपकी स्थिति क्या है कि आप गलत हैं. लेकिन कितने गलत हैं, अगर क्वेश्चन पूछोगे कितने गलत हैं तो क्या आएगा आंसर, कि आप काफी गलत हैं. ओके.
So quiet is adverb. He was speaking loudly. वो बोल रहा था. वह बोल रहा था. कैसे बोल रहा था? वो बहुत ऊंचा बोल रहा था. Loudly. Okay, loudly is adverb here. So next one, this tree is growing fast. यह पेड़ बहुत जल्दी बढ़ रहा है. तो फास्ट, यह पेड़ बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? जल्दी. Fast is adverb. Okay. So these are the types of simple adverb. Adverbs of time. Adverbs of time का मतलब क्या है कि आप इसमें क्वेश्चन क्या पूछोगे? कब. जो भी हो रहा है वाक्य में, वो कब हो रहा है. अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो जो वर्ड है आपको आंसर में मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा. ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल. आई हैव हर्ड दिस बिफोर. मैंने ये पहले सुना हुआ है. मैंने कब सुना हुआ है? मैंने ये पहले सुना हुआ है. पहले है ना, पहले बता रहा है हमें. कब का आंसर पहले आ रहा है, तो बिफोर. आई हैव हर्ड दिस बिफोर. तो बिफोर इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ टाइम. ही कम्स हियर डेली. वह आता है, वह यहाँ आता है, लेकिन कब आता है? वो रोज आता है. तो डेली. डेली इज एडवर्ब ऑफ टाइम. द एंड सून केम. अंत जल्दी ही आया. एंड कब आया? जल्दी. सून इज एडवर्ब ऑफ टाइम. आई हर्ट माई नी yesterday. मेरे घुटने में लग गई कल. कब लगी? कल लगी. yesterday. Okay, so yesterday is adverb of time. So our next type, adverb of frequency. I have told you twice. अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि कितनी बार. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई भी काम हुआ, वो कितनी बार हुआ. I have told you twice. मैंने आपको बताया. कितनी बार बताया? 2 बार. तो I have told you twice. Twice is adverb of frequency. Okay. So next one, he often makes mistakes. वह गलतियां करता है. कितनी बार गलतियां करता है? बहुत बार करता है. ऑफन यूजुअल है ये, है ना. बहुत बार करता है वो तो गलतियां. ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स. नेक्स्ट वन, आई हैव नॉट सीन हिम वंस. मैंने उसे नहीं देखा. कितनी बार नहीं देखा? वंस. एक बार नहीं देखा मैंने. तो वंस क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके. ही सेल्डम कम्स हियर. वह आता है यहाँ. कितनी बार आता है? कभी कभी. सेल्डम. ओके, कभी कभी. नाउ नेक्स्ट वन, next type is adverb of place. So what question you have to ask here? कहाँ. stand here. इसमें क्या क्वेश्चन पूछोगे? खड़े हो जाओ यहाँ, है ना. तो क्वेश्चन क्या है? कहाँ खड़े हो? stand here. here आंसर मिल रहा है, यहाँ खड़े हो. तो यहाँ जो है वो क्या हो गया? adverb of place. ओके. he looked up. उसने देखा. कहाँ देखा? up, ऊपर. go there. जाओ. कहाँ जाओ? वहां. there. so there is adverb of place. my brother is out. मेरा भाई बाहर है. so कहाँ है आपका? कहाँ है मेरा भाई? out. so my brother is out. out is adverb of place. next one, the little lamb followed Mary everywhere. जो नन्हा मेमना था, वो जो नन्हा मेमना मैरी को पीछा कर रहा था. मैरी का पीछा कर रहा था. कहाँ पीछा कर रहा था? एवरीवेयर, हर जगह. ओके, सो एवरीवेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, सो नाउ आई थिंक दीज 3 आर क्लियर. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मैनर का मतलब है कि आप बता रहे हो कैसे हो रही है कोई चीज. कैसे हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है कैसे हो रहा है. तो गोविंद रीड्स क्लियरली. गोविंद लिखता है. कैसे लिखता है? यू हैव टू आस्क कैसे लिखता है. तो द आंसर विल कम क्लियरली. बहुत ही साफ सुथरा लिखता है ना. क्लियरली. तो क्लियरली इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ मैनर. तो दिस स्टोरी इज वेल रिटन. यह कहानी लिखी गई. दिस स्टोरी इज रिटन. यह कहानी लिखी गई. कैसे लिखी गई? बहुत अच्छे से. वेल, है ना. तो वेल जो वेल क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर. You should not do so. So you should not do. So this is what? कि आप ये मत करो.
यू शुड नॉट डू, आप मत करो, आपको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं सॉरी, क्या क्या नहीं आएगा इसमें, कैसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सो, यू शुड नॉट डू सो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे। सो एडवर्ब ऑफ मैनर। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा बहुत शांतिपूर्वक सो रहा है, सोया। तो कैसे सोया? साउंडली। ओके। द बॉय वर्क्स हार्ड, कैसे वर्क किया? द बॉय वर्क्स हार्ड, कैसे काम करता है लड़का? हार्ड, बहुत मेहनत से काम करता है। द बॉय वर्क्स हार्ड। तो ऑल दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। व्हाट डज इट मीन? डिग्री का मतलब है कि किस एक्सटेंड तक, लाइक कोई कितना किसी का कितना ज्यादा प्रभाव है ना, किस डिग्री तक, या फिर कितना है, कोई चीज कितनी है, क्वांटिटी क्या है किसी की। तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड, जो भी कार्य हो रहा है, जैसे आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूं, है ना। कितनी कितनी तैयार हूं? फुली, पूरी तरह से तैयार हूं। आई एम फुली प्रिपेयर्ड। तो दिस इज टेलिंग समथिंग अबाउट fully, sorry, my preparation, है ना। It is telling about my preparation, so fully. She sings pretty well, वह गाती है, वह अच्छा गाती है। और अगर मैं कहूँ she sings well, वह अच्छा गाती है। बट ठीक है, वेल जो हो गया, मैंने गाने की विशेषता बता दी, वेल कि अच्छा अच्छा गाती है, तो वेल एडवर्ब हो गया, है ना, सिंपल। कौन सा वाला एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। उसकी मैंने विशेषता बताई कि कैसा गाती है, अच्छा गाती है। लेकिन प्रेटी क्या हो गया इसमें? वे काफी अच्छा गाती है। मैं ये लिख रही हूँ कि शी सिंग्स प्रेटी वेल, वो काफी अच्छा गाती है। तो काफी एक डिग्री हो गई, कम अच्छा, ज्यादा अच्छा, कुछ हो सकता है ना, कम ज्यादा या फिर ठीक ठीक ऐसे होता है। तो ये डिग्रीज होती हैं कि आप कहते हो कि शी कैन सिंग प्रेटी वेल और शी कैन सिंग लिटिल वेल, है ना। तो ये डिफरेंट डिग्रीज हैं, यू कैन यूज देम। तो such type of words are called adverbs of degree. Or we can use quantity, like he was too careless, वह बहुत केयरलेस है, या फिर मतलब he is he was too careless. So two what, two is telling what? Degree of his carelessness. So he was too careless. Okay, so two here is adverb of degree. You are partly right. आप सही हो, लेकिन कितना सही हो? आप थोड़ा थोड़ा सही हो, पार्टली, थोड़ा थोड़ा सही हो, आप आधा आधा सही हो। तो यू आर पार्टली राइट। ओके, पार्टली इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ डिग्री। So now next one, adverbs of affirmation or negation. जब आप पूरा पुष्टि करते हो किसी कि हाँ, बहुत स्ट्रेस दे के बोलते हो कि हाँ, बहुत पुष्टि करते हुए बोलते हो, तो अफर्म, उसे कहते हैं अफर्म करना। तो जैसे सेंटेंस में देखो, श्योरली यू आर मिस्टेकन, जरूर निश्चित रूप से आप गलत हो, आप गलत हो निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से मतलब आप कुछ अफर्म कर रहे हो, आप कुछ बहुत श्योर, आप कुछ बोल रहे हो बहुत अफर्मेशन से। तो इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो भी ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। ओके ओके। सो नेक्स्ट वन, निगेशन। निगेशन क्या होता है कि आप नहीं कह रहे हो, नहीं। ओके, आई डू नॉट नो हिम, मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं मैं। तो निगेशन के वर्ड्स जो होते हैं, आई डू नॉट नो हिम, जब क्रिया के बारे में बात हो रही होती है, हाँ या ना में, क्रिया जो भी आप कर रहे हो कि आई डू नॉट प्ले, है ना। तो नॉट जो होता है, अगर क्रिया के लिए यूज हो तो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन। ओके, कैन यू सी, आर यू एबल टू सी माई स्लाइड्स? जी जी, दिख रही है दिख रही है। उनके यहाँ ओके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आप बोलिए। ओके। सो नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन।
he is hence unable to cross the river. आप कुछ रीजन दे रहे हो कि ऐसा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, या फिर ऐसा हो पाया तो क्यों हो पाया. He is hence unable to cross the river. अतः वो उसने नदी पार करने के लिए वो सक्षम नहीं था. he is unable. He is unable कि वह सक्षम नहीं है, अतः वह नदी पार करने के सक्षम नहीं है. कुछ जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कुछ लिखते हो कि ये हुआ, अब फिर उसके बाद उसका लॉजिकल वो देते हो ये क्यों नहीं हुआ, या फिर लिखते हो कि ऐसा हुआ था इसीलिए ऐसा हुआ. जैसे जैसे सेकंड में देखो, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही वाज हैविंग पेन इन हिज स्टोमक. अगर मैं कहूँ कि ही वाज हैविंग पेन इन हिज स्टोमक, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसीलिए वो स्कूल से चला गया. ही देयरफॉर, तो देयरफॉर वो स्कूल से गया. उसका रीजन जो रीजनिंग कर रहे हो आप, रीजनिंग के लिए जो यूज कर रहे हो, तो देयरफॉर यूज कर रहे हो. इसीलिए इसलिए वो स्कूल से गया. तो देयरफॉर इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ रीजन. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर व्हाट? जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी क्रिया है वो क्या है, कहाँ है, कैसे है, या फिर कितनी है, या फिर कब है ना. अगर क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज होता है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. तो लेट अस सी द एग्जांपल्स. वेयर इज अब्दुल? आई एम आस्किंग वेयर इज अब्दुल, कहाँ है अब्दुल. तो इट इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ प्लेस. मैं प्लेस के बारे में पूछ रही हूँ. तो वेयर, कहाँ. व्हेन डिड यू कम? आप कब आए? तो कब एडवर्ब ऑफ टाइम. अभी हमने डिस्कस किया था ना एडवर्ब ऑफ टाइम. तो व्हेन डिड यू कम, उसके लिए अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि आप कब आए, तो आपको कुछ आंसर में क्या मिलेगा कि आई केम येस्टरडे, या फिर आई केम एट 9 AM, लाइक एनीथिंग, है ना. वॉट एवर आंसर यू कैन गिव. व्हेन डिड यू कम. So when is what? Adverb of time, interrogative के corresponding. Interrogative adverb corresponding to adverb of time. So why are you late? आप क्यों लेट हो? आप क्यों देर से आए? तो why, क्यों. तो adverb of reason. अगर आप किसी कोई reason पूछते हो तो क्या बोलते हो? क्यों. So why. How did you contrive it? आपने कैसे किया? तो how, कैसे किया, how. Okay, so how is we want to ask question about adverb of manner, कैसे किया. Okay, how many boys are there in your class? कितने हैं, कितने लड़के हैं आपकी क्लास में. तो how many. Okay, so how many, कितने कितने हैं. how high, कितना बड़ा है राजाबाई टावर. how high is राजाबाई टावर, कितना बड़ा है. तो you are asking question, कितना बड़ा है. this is about degree, है ना. तो आंसर क्या आएगा? थोड़ा कम बड़ा है, या फिर ज्यादा बड़ा है, या बहुत बड़ा है ना. दीज आर ऑल डिग्रीज. तो नेक्स्ट वन इज relative adverb. Relative adverb is similar. We have also discussed about relative adjective, if you remember. उसमें क्या करते थे हम कि अगर हमने सेंटेंस में पहले नाउन, एक नाउन के बारे में दोबारा से अगर हमें रेफर करना होता था बिना उसे रिपीट किए, तो हम एडजेक्टिव यूज करते थे, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, है ना. जैसे राम इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, तो हु यूज हो रहा है इसमें, रिलेटिव एडजेक्टिव. ऐसे ही एडवर्ब्स में भी रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं. जैसे आई रिमेम्बर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, मुझे याद है वो घर जहां मेरा जन्म हुआ था. वेयर, तो हाउस के बारे में, अब देखो हाउस है यहाँ पे, आई रिमेम्बर द हाउस, और उसी को ही रेफर कर रहे हैं जहां, घर जहां मेरा जन्म हुआ था. सो वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब. नेक्स्ट वन, दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट. दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट. ये यही रीजन है जिसकी वजह से मैं चली गई, है ना. तो व्हाई, रीजन को वो कर रहे हैं, फिर से वो कर रहे हैं, रीजन को रेफर बैक कर रहे हैं कि व्हाई आई लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट वन, डू यू नो द टाइम. अब आपकी स्लाइड नहीं दिख रही है, एक बार उसको
सेट कर। ओके जी आप दिख रही। okay so next one do you know the time when the Punjab mail arrives? तो क्या आपको पता है टाइम जब पंजाब मेल आती है तो व्हेन इसमें टाइम को रेफर बैक कर रहे हैं व्हेन जब है ना तो दिस इज रिलेटिव एडवर्ब so let us do a few exercises so first one try again so what is adverb here again yes try again so what type of adverb it is adverb of what this is adverb of frequency try आप ट्राई करो कितनी बार करो फिर से adverb of frequency yes he is too shy too yes too is correct too is what adverb of degree है ना we are telling about कि वह बहुत ज्यादा ही संकोची है degree yes that is well said well yes well is correct हाँ this is adverb of manner correct I am much relieved to hear it much yes correct what type of adverb it is degree yes correct his dog is inside the garden inside yes what type of adverb it is adverb of place inside है ना place के बारे में बात होगी adverb of place show me the ground where he played where correct yes so it is a relative adverb it relates to the ground okay he has been shamefully treated he has been shamefully treated shamefully correct yes so it is adverb of what manner yes wisdom is too high for a fool too yes type what is the type it is a degree yes adverb of degree where are you going where yes correct okay when will you take your exams when correct yes adverb of time this is interrogative adverb with respect to time when will you how do you feel कैसा है ना this is with respect to what adverb of manner कैसा adverb of manner
कैसा फील कर रहे हो? ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। हाँ, मंडे। यस, एडवर्ब ऑफ व्हाट इज दिस? एन एडवर्ब ऑफ टाइम। यस। अब सी, ऐसा भी होता है कि इफ यू सी द लास्ट एग्जाम्पल, मंडे इज अ नाउन बट इट इज ऑल्सो यूज एज एन एडवर्ब। सो अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि आप हार्डली ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। आप हार्डली ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस में वो कैसे यूज हो रहे हैं उस हिसाब से आप बोलते हो कि वो कैसे, वो किस तरह से यूज हो रहे हैं, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे मंडे यहाँ पे एडवर्ब है ना? तो ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, वैसे ही नाउन भी होता है। ओके, सो यू हैव टू सी इन द सेंटेंस कि सेंटेंस में ये किस तरीके से यूज हो रहा है। ओके, आगे हमें और पता चलेगा व्हेन वी कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अब ये एग्जाम्पल देखो जिनमें जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे फास्ट, अर्ली, क्विक, इनफ, बेटर, ओनली, बैक, है ना? ये सेम वर्ड्स यूज हुए हैं एज एन एडवर्ब, फास्ट, अर्ली, क्विक, इनफ। सो व्हाट दीज एग्जांपल्स आर टेलिंग यू कि सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड सेम वर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एडवर्ब। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि ये एडजेक्टिव में कुछ चेंज आता है, उससे एडवर्ब बनता है। आगे आप देखोगे जैसे फास्ट का फास्टली हो जाता है, क्विक का क्विकली हो जाता है, लेकिन कई बार सेंटेंस में क्विक का क्विक ही रहता है और वो एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो लेट अस सी द एग्जांपल्स हियर। सी, राम इज आवर फास्ट बॉलर। तो इसमें जो फास्ट है वो बॉलर, राम एक फास्ट गेंदबाज है ना, तेज गेंदबाज है। तो गेंदबाज की विशेषता बता रहा है कि वो तेज है, तो दिस इज व्हाट एडजेक्टिव है ना। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, राम कैन बोल फास्ट। राम बॉलिंग कर सकता है, कैसे? फास्ट, बहुत फास्ट बोल कर सकता है वो। तो दिस इज एडवर्ब। नेक्स्ट वन, आर यू एन अर्ली राइजर? क्या आप जल्दी उठने वाले हो? हेलो, हाँ, आर यू एन अर्ली राइजर? तो दिस इज अबाउट राइजर, है ना। आर यू एन, आप विशेषता पूछ रहे हैं कि क्या आप जल्दी उठते हो, तो नाउन के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन वी स्टार्टेड आवर जर्नी अर्ली, इसमें क्या हो रहा है कि अब अपनी जर्नी की विशेषता कि आपने जल्दी, जर्नी जल्दी थी, लेट थी, क्या थी, है ना, उसकी विशेषता आपको पता चल रही है। वी स्टार्टेड आवर जर्नी अर्ली, तो क्रिया की विशेषता है ये, अर्ली। तो नेक्स्ट वन, ही इज क्विक टू टेक ऑफेंस। क्विक, ही इज क्विक मतलब उसके बारे में बात हो रही है, वह बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, वह बहुत जल्दी, ही इज क्विक। लेकिन इसमें देखो रन क्विक, तो इसमें भागो तेज, कैसे भागो तेज। तो क्विक इज द वर्ड, सेम वर्ड है क्विक, लेकिन इसमें एडजेक्टिव की तरह और सेकंड वाले में एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। वी हैव फूड इनफ टू लास्ट अ वीक, और इसमें इसमें किसकी बात हो रही है? फूड की, है ना। इनफ, इनफ फूड। यहाँ पे शी सिंग्स वेल इनफ, यहाँ पे गाने की, वेल इनफ, तो दिस इज अ डिग्री, काफी अच्छा गाती है ना, काफी अच्छा, तो दिस इज डिग्री। ही इज नो बेटर देन अ फूल, ऐसे ही बेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, ही के बारे में बता रहा है कि नो बेटर, कि मूड से ज्यादा नहीं है वो। ही नोज मी बेटर देन यू, अब यहाँ पे जानने की बात हो रही है कि वो ही नोज मी बेटर, वो मुझे जानता है आपसे ज्यादा, वो आपसे ज्यादा जानता है मुझे, तो जानने की बात हो रही है, अच्छा जानता है, सॉरी। ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, तो ओनली इसमें नाउन, नाउन के बारे में पॉइंट कर रहा है। यू कैन ओनली गेस, इसमें गेस, गेस के लिए ओनली यूज हो रहा है कि यू कैन ओनली गेस, आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हो, सिर्फ डिग्री। ओके,
he went to the back entrance. back एंट्रेंस की बात हो रही है, एंट्रेंस की विशेषता बता रहा है कि बैक पीछे वाला एंट्रेंस, पीछे वाला एंट्रेंस की बात हो रही है। अब गो बैक, अगर उसकी बात ये कहो कि ये तो एडवर्ब ऑफ वो हो गया प्लेस, है ना, कि आप पीछे जाओ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जाओ कैसे, कहाँ जाओ, पीछे। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, वॉइस की बात हो रही है, ऊंची आवाज। यहाँ पे डोंट टॉक सो लाउड, बोलो मत, ऊंचा मत बोलो, तो बोलने की बात, वर्ब की बात हो रही है, तो लाउड इज एडवर्ब। So similarly, he is quick to take offense. Okay, run quick. So हमने एडजेक्टिव्स में भी देखा था कि देर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, लाइक उसमें था ना कि इफ लाइक ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, तो ऐसे ही डिग्रीज डिफाइन हमने देखा था कि एडजेक्टिव्स में डिग्रीज डिफाइन होती हैं, ऐसे ही एडवर्ब में भी होता है। Like we can see the example fast, faster, fastest. He runs fast. So he runs faster than Ram. He runs fastest of all the boys. So these are all. This is the positive. This one is comparative. This one is superlative. Okay. Long, longer, longest. Hard, harder, hardest. Soon, sooner, soonest. Only er and est is coming. सो नेक्स्ट वन इज जो वर्ड्स एल वाई से स्टार्ट वो होते हैं, एंड होते हैं, हमने पहले भी देखा था एडजेक्टिव्स में भी यही होता है कि जो वर्ड्स एल वाई में होते हैं एंड, उनके लिए मोर और मोस्ट होता है यूज, है ना, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, अर्ली, लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक ध्यान दो, देयर इज अ पॉइंट हियर। अर्ली, अर्ली ये स्विफ्टली है, ये एडवर्ब है ना। हाँ, कुछ जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं कि स्विफ्ट का स्विफ्टली हो जाता है और स्किल का स्किलफुली हो जाता है। तो ये एडवर्ब किसी एक रूट वर्ड से बने हैं, लेकिन इसमें ध्यान दो, अर्ली, अर्ली खुद में ही एक वर्ड है, दिस इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, दिस इज खुद खुद में एक वर्ड है। तो अर्ली का मोर अर्ली, मोस्ट अर्ली नहीं होगा, अर्ली का अर्लियर, अर्लीस्ट होगा। ओके, और वाई हटके आई ई आर लग जाता है और आई ई एस टी, दैट यू हैव टू टेक केयर कि कैसे फॉर्म होती हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। सो नेक्स्ट वन, कुछ सी ओनली एडवर्ब्स ऑफ मैनर, डिग्री एंड टाइम एडमिट ऑफ कंपैरिजन। मतलब जो हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हम पूछते हैं कि कैसे, हम ये पूछते हैं कैसे, या फिर डिग्री, डिग्री मतलब कितना, डिग्री या क्वांटिटी कितना, और टाइम कब, जब। तो इन सब में जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए कभी कंपैरिजन, उनके लिए ही कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर जैसे ऐसे है कि बाकी के जो बच्चे बच्चे जो हमने पढ़े थे कि जैसे कोई रीजन लेते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ही, देयरफॉर, देयरफॉर का कुछ कंपैरेटिव डिग्री होती नहीं है, इसलिए इसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। इंटेरोगेटिव, इसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। हाउ, व्हेन, इनकी, इनका कुछ भी आप डिग्रीज नहीं लिख सकते, कंपैरेटिव डिग्रीज। ओके, रिलेटिव का भी। तो कंपैरेटिव डिग्रीज किसकी एग्जिस्ट करती है, बस मैनर की। ओके, क्लियरली, क्लियरली का क्या लिखते हो कि मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, साउंडली, मोर साउंडली, मोस्ट साउंडली। So all these are harder, hardest. Okay, so all these are इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। ओके, लेकिन इंटेरोगेटिव, रीजन और रिलेटिव, इनकी कंपैरेटिव डिग्रीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ना ही अफर्मेशन की, श्योरली, यहाँ पे भी कोई भी कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ऑल्दो इनमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे सो। ओके, सो की कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, दैट यू हैव टू सी व्हाइल प्रैक्टिसिंग।
तो देखो जैसे एग्जांपल्स हैं कि नाउ देन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, नाउ अभी, देन तब। तो नाउ देन वेयर देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इन सब की भी कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका हम कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते जिनके थ्रू। सम ऑफ द कॉमनेस्ट एडवर्ब्स फ्रॉम देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इरेगुलर, मतलब कि फॉर्म ही चेंज हो जाती है वर्ड्स की। जैसे लिटर का लेस, लीस्ट, लेट का लेटर, लेटेस्ट। अगर कंपैरेटिव देखो तो लेटर हो गया उसका, फिर लेटेस्ट हो गया, वेल, बेटर, बेस्ट, फार, फादर, फारदेस्ट। ओके, so these are all comparative and superlative degrees of adverb. Now let us do an exercise. So suddenly, uh, can you tell what are the comparative and superlative degrees? More and most, yes, correct. More suddenly, more suddenly. Often, more, most, yes. Near, near, nearer, nearest. Okay, nearer, nearest. Loud, louder, loudest. Loudly is so loud can also be used as an adverb and loudly also. Okay, but for loud, comparative degree is louder and then loudest. Hard, harder, hardest. Correct. Yes. So in the next slide, we will study about formation of adverbs. How adverbs are formed. See, in the first example, what you are seeing, adverbs of manner कैसे बनते हैं? Are mostly formed from adjectives by adding ly. Adjectives में अगर ly कर दो add, तो वो adverb बन जाता है। जैसे clever का cleverly, he is clever, he is clever. लेकिन अगर कहो he acts cleverly, he is foolish, he acts foolishly. ऐसे ही you can form adjective से adverb. Okay, clearly, yes, clear से clearly, correct. Clever, cleverly, foolish, foolishly, wise, wisely, quick, quickly, kind, kindly, elder, elderly. In the next example, you see when the adjective ends in y, जैसे कि adjective happy है ना, खुश, तो y से end हो रहा है, तो if we have to form its adverb, we have to replace y with ily, happily. Similarly, heavy, heavily. So happy and heavy are adjectives, and corresponding adverb कौन से हैं? Happily and heavily. Okay. So when the adjective ends in le, like single, le, there are different rules कि कैसे adverb form करते हैं. So you can see कि single and double, these are both adjectives. If you have to form its adverb, then you have to write singly, doubly. Okay. In another example, you can see there are few adverbs that are compound in compound form, which are formed from preposition and adjective. You will get to know about prepositions in the next lecture, but you can see here कि ये सारे adverbs जो हैं वो कुछ दो वर्ड से बने हैं, इसीलिए इन्हें compound कहते हैं. Tomorrow, today, overboard, besides. Okay, are you getting all these? Tomorrow, adverb of time it is, है ना? Today, आज, tomorrow, कल, overboard, besides, है ना? Overboard, अगर आप जहाज की बात करते हो तो जहाज से बाहर, तो adverb of place, besides इसके अतिरिक्त. Okay, so all these are compound adverbs. Another example of compound adverbs जो कि preposition और adjective से बनते हैं, behind, below, beyond, along, allowed. Okay, so दो preposition और adjective के combination से ये compound adverbs बनते हैं. Okay,
So some adverbs are compounds of a preposition and एक और example है जिसमें preposition और adverb के combination से भी adverb बनते हैं, like within, without, without. आपको ज्यादा क्लियर होगा जब आपको पता होगा कि prepositions क्या होते हैं. Before, beneath, okay? We'll revisit all these after discussing about the preposition. Now next one, two adverbs sometimes go together, joined by the conjunction. Like, see, क्या होता है कि I want him again and again. Again is an adverb. Again is an adverb, and they are joined together. So it is a single adverb. Okay, I want him again. मैंने उसे बार बार want किया. Good book should be read again and again. बार बार. I write to him now and then. मैं लिखता ही रहता हूँ उसे जब तब, है ना? Now and then. He reads his favorite novels over and over. बार बार, है ना? Over and over is adverb here. Okay, so now we are complete with the description of adverb. I think if you have any doubt, you can discuss your doubts with me now. जी, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछिए।